Praise the Lord. May grace and peace and love of God be with you always, even from now. जय मसीह की। परमेश्वर का प्रेम, अनुग्रह और शांति आपके साथ बनी रहे। I know all of you are so filled with anxiety and expected something great to be happen in this program. मैं जानता हूं कि आप बड़े उत्साह और अपेक्षा के साथ इस प्रोग्राम में कुछ बड़ा कार्य होने का इंतजार कर रहे हैं। We received a lot of phone calls all over the world. दुनिया के कई कोनों से मेरे पास कई कॉल आते हैं। And some of you constantly praying for us. आप में से कुछ निरंतर हमारे लिए प्रार्थना भी करते रहते हैं। Many even wants my daughter to speak unto you. और कई चाहते हैं कि मेरी बेटी भी आपके बीच बात करे। But as you know, the ministries of the Lord are going on increasing day after day by the Lord's grace, rising up different people as an evangelist and pastors and so on. अगर आप जानते हैं कि परमेश्वर की सेवकाएं दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है और कई लोगों को परमेश्वर खड़ा कर रहा है पासबानों और इवेंजलिस्ट के तौर पर। But some of you are so sincere in remembering us almost every month and never fail to help us. आप में से कुछ लोग हमेशा हर महीने हमको याद करते हैं और हमें मदद करने से चूकते नहीं हैं। Because of that, this program is being possible. इसी कारण से यह प्रोग्राम संभव हो पा रहा है। If the partners are increasing, we can also increase the program. और अगर हमारे सहभागी बढ़ते हैं तो हमारे प्रोग्राम भी हम बढ़ा सकते हैं। You know very well, almost 1,000 deprived, despised people we are helping every month. और आप जानते हैं अच्छी तरह से कि 1000 से भी ज़्यादा लोगों को हर महीने हम मदद करते हैं, Including orphans, widows, elderly, spastic and so on. जैसे अनाथों, विधवाओं, बुजुर्गों, मंदबुद्धि जैसे लोगों को, Mentally retarded and differently able, and also the widows who are very young affected by HIV. दिमाग से कमज़ोर लोगों को, विशेष योग्यताएं प्राप्त लोगों को, HIV से ग्रसित विधवाओं को भी। And now we have started rural hospital also. और अब हमने गांवों में कुछ अस्पताल की सेवाएं भी शुरू की हैं For the poor. गरीबों के लिए। Little by little we are improving. धीरे धीरे करके हम बढ़ रहे हैं। We're doing deliverance ministry nowadays is very difficult. छुटकारे की सेवकाई करना आजकल बहुत मुश्किल हो गया है। You can preach a lot, आप प्रचार तो बहुत कर सकते हैं, but bring down the miracle is not easy. मगर चमत्कारों को नीचे उतार लाना आसान नहीं होता है। Crying for others is not easy. दूसरों के लिए आंसू बहाना मुश्किल काम होता है। So those who are involved in this kind of ministry इसलिए जो कोई इस प्रकार की सेवकाई में लिप्त हैं, have to forget their sleep, उनको अपनी नींद को भूलना पड़ता है, their pleasures, अपने मनोरंजनों को भूलना पड़ता है, even many times their own families और कई बार अपने परिवारों को भी भूलना पड़ता है and relations. और अपने रिश्तेदारों को भी, Because the burden of the people are so great. क्योंकि लोगों का जो बोझ है वो बहुत ज्यादा है। They are so in dire need of prophets and apostles. नबियों का और प्रेरितों का एक बहुत बड़ी जरूरत है। So this year the Lord told me इसलिए इस साल परमेश्वर ने मुझसे कहा that to prepare the prophets and apostles, कि मैं प्रेरितों को और भविष्यवक्ताओं को तैयार करूं, so they may also arise and be used by God. ताकि वो भी खड़े हो सके और परमेश्वर के द्वारा इस्तेमाल किए जा सकें। Recently you might have commemorated the passion of Jesus Christ on the cross and his resurrection. पिछले कुछ दिनों में आपने यीशु के क्रूस पे चढ़ाए जाने और उसके पुनरुत्थान को मनाया होगा। Of course we are so happy because we are worshiping the living God. हाँ, हम बहुत खुश हैं क्योंकि हम एक जीवित परमेश्वर की आराधना करते हैं।
The Jews, especially the scribes and Pharisees, Sadducees, were so filled with jealousy. यहूदी खास तौर से सदूकी और फरीसी बहुत जलन को रखते थे And allow him to be crucified in a most cruel manner. और उन्होंने यीशु को बड़े निर्दयता के साथ क्रूस पर चढ़ाने का साजिश रचा The most heinous crime they have done. और उन्होंने बहुत बुरा जुर्म किया था They didn't allow even an inch of skin to remain or a blood. उनकी वजह से यीशु के शरीर में एक बूंद खून और खाल भी ना बच पाया था Or even a drop of blood. लहू का एक बूंद भी नहीं Everything drained out. उसके शरीर से सब बह गया And not only that, सिर्फ इतना ही नहीं they didn't want him to have a tomb. वे नहीं चाहते थे कि उसको एक कब्र मिल पाए But according to the prophecy of Isaiah, यशायाह के नबूवत के अनुसार the Lord prepared the most richest person, Joseph of Arimathea, to give a new tomb for Jesus. एक बहुत ही अमीर व्यक्ति को परमेश्वर ने नियुक्त किया यूसुफ इरमतिया का कि वो उसको एक कब्र दे सकें Even after that, the evil plan of this jealousy people have not been ended. इन जलन रखने वाले बुरे लोगों के चाल के बावजूद भी They put a big boulder, stone on the door of the tomb. उन्होंने एक बड़ा पत्थर उस कब्र के मुहाने में रख दिया The archaeologist says the stone was weighing 5 tons. विशेषज्ञ कहते हैं कि वो पत्थर तकरीबन 5 टन का हुआ होगा That is the weight of big Tarsus lorry with sand. यह एक ट्रक जो रेत से भरा है उसके वजन के बराबर होगा How can a dead body can come out of this stone? अरे भाई एक मृत शरीर इसके बाहर कैसे निकल सकता है He was dead वो तो मृत हो चुका था and he was cruelly being killed. और बड़ी निर्दयता के साथ वो खत्म किया गया था And why these people तो क्यों यह लोग are planning like that? योजना इस तरह से बना रहे थे All his disciples ran away because of fear. और सारे चेले डर के मारे भाग गए Nobody was there कोई भी वहां नहीं था except some ladies who loved him. सिर्फ कुछ औरतें वहां थी जो उनसे प्रेम करती थी They were very sincere, crying and following. वो बड़े शिद्दत के साथ रोते हुए उसके पीछे चल रही थी How can the ladies can roll this stone? किस तरह से वो औरतें ये पत्थर लुढ़का सकती थी Can't be possible. अरे ये हो नहीं सकता And not only that, और सिर्फ इतना ही नहीं they put the government seal उसके ऊपर उन्होंने सरकार का मुहर लगा रखा था and they put guard for him और उसके ऊपर पहरेदार खड़े कर रखे थे so that nobody can steal his body. ताकि कोई भी उसके शरीर को चुरा ना सके They're very ridiculous people. ये बड़े ही अजीब लोग थे But Jesus rose again. मगर यीशु जीवित हो उठा Even before the stone being rolled by an angel. इससे पहले कि पत्थर स्वर्गदूतों के द्वारा हटाया जाए That's what the Bible says very clearly. यही बाइबल कहता है हमसे He has risen in the early morning sun. वह अति भोर को ही जीवित हो गया Then the angels came, उसके बाद स्वर्गदूत आए rolled back the stone. और पत्थर को उन्होंने लुढ़का दिया Why they rolled back the stone? क्यों उन्होंने पत्थर को लुढ़काया Not for Jesus, यीशु के लिए नहीं but for the disciples to come and believe. बल्कि इसलिए कि चेले आकर देख सकें Jews never give importance to the ladies. यहूदी कभी भी स्त्रियों को बराबर का नहीं समझते थे Never at all heed to their voices. और उनकी आवाज को कभी सुनते नहीं थे Even in the court. न्यायालयों में तक नहीं One of the prayer of the Jews, यहूदियों की एक प्रार्थना ये थी praise the Lord because I am a Jew, धन्यवाद प्रभु का कि मैं यहूदी हूँ I am circumcised, मेरा खतना किया गया है and I am not a heathen, और मैं एक अन्य जाति का व्यक्ति नहीं and I have a good temple, मेरे लिए एक अच्छा मंदिर है and I have not born as a girl. और मैं एक स्त्री होकर नहीं जन्मा हूँ
Praise the Lord. धन्यवाद प्रभु का। This is their prayer every day. ये उनकी प्रार्थना होती थी What a प्रतिदिन silly की। thing, you know. बड़े अजीब सी बात है, Jesus brought revival. मगर यीशु वहां पे बेदारी लेके आए Actually, a great revolution और वहां पे एक बड़ा आंदोलन सा हुआ by bringing up the ladies in the highest position. उन स्त्रियों को उच्च ऊंचे स्थान तक लेके आने के द्वारा। That's why God knew very well. इसलिए परमेश्वर बड़े अच्छे से जानते थे। Even these ladies go and told the disciples Jesus have risen. They won't believe. कि ये अगर स्त्री भी जाकर यीशु जी उठे हैं कहकर बताते थे तो चेले विश्वास नहीं करते। That's why इसीलिए he sent for his angels to roll back the stone. उन्होंने अपने स्वर्गदूतों को भेजा कि वो पत्थर को लुढ़का दें So John and Peter can come ताकि यूहन्ना और पतरस आ सकें and had an evidence. और उनके पास सबूत हो। It's not a fake news. ये एक झूठी कहानी नहीं, Real thing. ये एक सच्ची कहानी है। Tomb was empty वो कब्र खाली था and the cloth which has been used to wrap Jesus और यीशु को लपेटने के लिए जो कपड़ा था had been put in good arrangement. उसको कायदे से तह करके रखा गया था। What a wonderful thing. कितना ही अद्भुत बात है। But yet still the Bible says, मगर इसके बाद भी बाइबल कहता है, John chapter 20, 19 and 20, यूहन्ना 20 उसका 19-20, because of the fear उस डर के कारण, of the Jews, यहूदियों के डर के कारण hidden themselves in a secret room, चेलों ने अपने आप को एक कमरे में बंद कर लिया, in upper room, उस ऊपर के कमरे में बंद and कर लिया closed the door, और दरवाजा बंद कर and दिया shivering, और वो कपकपा रहे थे because they were afraid. क्योंकि वो डरे हुए थे Pharisees and Sadducees, फरीसी और सदूकियों से। they were thinking that they will come and kill them. वो सोच रहे थे कि आके हमें खत्म कर देंगे। Then Jesus entered उसके बाद यीशु आए and said to them, और उनसे कहा, fear not, डरो मत, peace be unto you. शांति तुम्हारे साथ सदैव बना Today रहे। and also the coming weeks, आज और आने वाले हफ्तों में we are going to meditate on the word of fear not. हम उस शब्द मत डर पर ध्यान देंगे। Peace be unto you. शांति तुम्हें मिले। Don't be afraid or fear not. This word is coming in the Bible 365 times. 365 बार बाइबल में मत डर कह के लिखा गया है। Why? क्यों? 1 year is equal to 365 days. एक साल 365 दिनों के बराबर होता है। So 365 times the fear not is coming in the Bible. और 365 बार लिखा गया है कि मत डर। In this world where we are living nowadays, और इस संसार में जहां हम आजकल जीते हैं, most of the people have fear. ज्यादातर लोग भय रखते हैं। Fear about their future. वो अपने भविष्य के बारे में भयभीत Fear हैं about the exam and exam result. और परीक्षा और उसके परीक्षा के परिणामों से Fear भयभीत about हैं। their job. अपने नौकरी के कारण Fear भयभीत हैं, about the sickness. अपने बीमारी के कारण भयभीत हैं, Fear about the future of the business. व्यापार में उनके भविष्य के बारे में भयभीत हैं, Fear about the children future. अपने बच्चों के भविष्य के बारे में भयभीत हैं, Fear about the husband or wife. अपने पति या पत्नी के प्रति भयभीत हैं, Fear about the enemies. अपने शत्रुओं से भयभीत हैं And fear about the hell. और नरक से भी भयभीत हैं And fear about satanic forces. और शैतान की ताकतों से भयभीत हैं। So many fears engulf the heart of the people of this world. इस संसार के लोगों के दिल को कई भयों ने जकड़ के रखा है। So we are going to see line by line what are the fear which has been mentioned in the Bible and how we can overcome. इसलिए एक एक करके हम उन भयों के बारे में देखेंगे जो बाइबल में लिखा गया है और यह कि किस तरह से हम उस पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। First the Bible says सबसे पहले बाइबल कहता है, the fear of the man engulfed in his heart when he departed from God. भय मनुष्य के हृदय में सबसे पहले तब आया जब वह परमेश्वर से दूर हो गया। Genesis 3:10. उत्पत्ति 3:10। And also when a man
come to know the consequence of the sin, और साथ ही साथ जब मनुष्य पाप के उस दंड को समझता है, he used to get fear. उसके दिल में भय आ जाता है। 1 Samuel 28:20. पहला सैमुएल 28:20। And the prophet Samuel said और नबी यशायाह ने इस प्रकार से कहा to Saul, शाऊल से, since you have not obeyed to the Lord's commandment, क्योंकि तुमने परमेश्वर की आज्ञा को नहीं माना है, you will be killed by Philistines. तुम फिलिस्तियों के हाथों मारे जाओगे And he will die. और तुम मृत्यु को प्राप्त Then करोगे। the Bible says, उसके बाद बाइबल कहता है Saul started to shudder and shivering कि शाऊल भय के मारे कांपने लगा। when Adam and Eve have done the sin against God. जब आदम और हव्वा ने परमेश्वर के खिलाफ पाप किया, They hid themselves. उन्होंने अपने आप को छिपा लिया। And on hearing the voice of God, और जब उन्होंने परमेश्वर की आवाज को सुना, they were so afraid. वो बहुत डर गए। They were just expecting the wrath of God in their life. वो अपेक्षा कर रहे थे कि परमेश्वर का क्रोध अभी उनके ऊपर गिरने वाला है। One of the great men of God one day prayed for a project to the Lord. परमेश्वर के एक महान दास ने एक दिन एक परियोजना के लिए प्रार्थना किया, For his business. अपने व्यापार से संबंधित। So it's about 2 billion pounds. ये 2 अरब पाउंड का एक परियोजना था। So everything seemed to be possible that is going to happen. और सब का सब संभव लग रहा था जो होने वाला था। But परंतु even after so many months, it never worked out. उनके काम के शुरू होने के कई महीनों के बावजूद भी, When it's about to come, last moment, it will be obstructed. और ये जब अंत में होता था तो उसमें कोई समस्या आ जाती थी। And he was crying and crying और वो रो रहा था और रो रहा था to the Lord. परमेश्वर के And the सामने। angel appeared one day in his dream और एक दिन एक स्वर्गदूत उनके सपने में आता है and told him, और उनसे कहता है, This is the sin you have done before 10 years back. 10 साल पहले तुमने यह पाप किया था, You have not asked forgiveness. उसके लिए तुमने अभी तक माफी नहीं मांगी है। So that's the one which obstructing the way of my answering of your prayer. और इसी कारण से तुम्हारी प्रार्थनाओं का उत्तर मैं दे नहीं पा रहा हूं। Then this man said, और उस व्यक्ति ने कहा, I'm a servant. मैं आपका दास I'm हूं, a reverend. मैं एक I रेवरेंड, led so many people unto you. मैं कई लोगों को आपकी ओर लेके आया हूं। Because of circumstances, I just told lie. परिस्थितियों की वजह से मुझे झूठ बोलना पड़ा, But that's not a big sin. मगर ये एक बहुत बड़ा पाप तो नहीं And था। the Lord says, और परमेश्वर ने whether कहा, that is a big sin or a small sin, वो चाहे बड़ा पाप हो या छोटा पाप हो, that caused the obstruction on the way of answering. उसी कारण से इस परियोजना में रुकावटें आ रही हैं। If that sin have not been forgiven, उस पाप का क्षमा प्राप्ति अभी नहीं हुआ है। whatever you do are the righteous thing. दूसरे जो कोई धार्मिकता के काम तुम क्यों ना करो, This small sin will drag you down into hell. ये छोटा पाप तुम्हें नरक की ओर लेकर चले जाएगा। And then he understood his mistake. उसके बाद उन्होंने अपनी गलती को समझ लिया And he started to cry, और वो विलाप करने लगे, fast and apologized. उपवास करके माफी मांगने लगे। Then he got that big order. और उसके बाद उनको वो बड़ा ऑर्डर मिल गया। He was doing both business and also pastoring a church. वो व्यापार भी करते थे, परमेश्वर की सेवकाई भी करते थे। See, just imagine सोच के देखिए, one small lie एक छोटा सा झूठ stop 2 billion pounds. 2 अरब की परियोजना को रोक देता है। We can say the cost of a small sin. हम कह सकते हैं कि यह एक छोटे से पाप का कीमत है। Then how many sins we have done? तो हमने कितने अधिक पाप किए होंगे, And how many billions we have to pay? तो उस हिसाब से हमें कितने अरब उसके लिए देने पड़ेंगे। Can't be even imaginable. क्या हम उसके बारे में अंदाजा भी लगा सकते हैं? Psalm 49, भजन संगीता 8 49 and 9.
उसका 8, 9 और 10। Nobody can find ransom for the remission of sin. उस पाप के लिए कोई भी कीमत नहीं चुका सकता, And no one have a power over the death and the pangs of the hell. और ना ही मृत्यु और नरक के ऊपर किसी का अधिकार है। When I was young, मैं जब जवान था, especially when I went to church, मैं जब कलीसिया में जाता था, the reverend was going on talking about hell, hell, hell. वो रेवरेंड नरक के बारे में बार बार बोल रहे थे। I was so much afraid. बहुत डरा हुआ था मैं, And against the rule, I knelt down. और मैं वहां पे घुटने टेक लेता था। My age was only 12 years. मेरी उम्र सिर्फ 12 साल की थी। Very young boy. बहुत छोटा लड़का था I मैं। cried and cried. मैं वहां पे रोता था, विलाप करता था। Jesus, यीशु, will you throw me into hellfire? क्या आप मुझे नरक की आग में झोंक देंगे? Then after 4 hours of outcry, और 4 घंटे विलाप करने के बाद he came and made a covenant with me. उन्होंने आकर मेरे साथ एक वाचा बांधी। That's why I'm today a man of God. इसीलिए मैं आज एक परमेश्वर का जन हूँ। He told me, उन्होंने मुझसे don't be कहा, afraid. मत डर, Fear not. मत डर, Your sins have been washed away तुम्हारे पाप धुल गए हैं by my blood. मेरे लहू के द्वारा, And also the consequence has been paid on the cross. और उसकी कीमत भी क्रूस के ऊपर चढ़ा दी गई है, चुका दी गई है। So you're set free. इसलिए अब तुम स्वतंत्र हो। So sin and its consequence cast a fear in human beings. और इसलिए पाप और उसका दंड एक डर को लेके आता है मनुष्य के अंदर। And secondly, दूसरी बात, the fear of the darkness. अंधकार का भय। Genesis 15:12. उत्पत्ति 15 का 12। When it was night, यह एक रात का समय था, when the darkness covered the face of the earth, जब संसार में अंधकार छाया हुआ था। Abraham got fear. अब्राहम को डर लगने लगा Fear engulfed his heart. और डर उसके दिल में समा गया। Before him, the dead animal was there. और उसके सामने एक मृत जानवर पड़ा हुआ था, The sacrifice of the lamb. वो मेमने का बलिदान पड़ा हुआ था। Eagles were hovering upon. उसके चारों तरफ गिद्ध चक्कर काट रहे थे। And without his knowledge, उसके ज्ञान के बगैर the pangs of death मृत्यु made him to be afraid. उसको भयभीत कर रही थी। Job 16:16. अय्यूब 16 का 16। Fear of death engulfed Job. अय्यूब को मृत्यु के भय ने जकड़ लिया। And look at King Hezekiah. और हिजकिय्याह राजा को देखें, When the prophet said, जब नबी ने कहा you will surely die, तुम निश्चित तौर पर he मृत्यु was को so प्राप्त करोगे, afraid. तो वो भयभीत हो Because he गया, was so young age. क्योंकि वो बहुत जवान था And that sickness caused him to die in the young age. और उस बीमारी के कारण वो जवानी की उम्र में ही मरने वाला था। Even though he was a great king, हाँ, वो एक बहुत महान राजा था, nothing can make him to escape. मगर उससे कोई भी उसे बचा नहीं पा रहा था। So he started to cry, cry, cry. इसलिए वो विलाप करने लगा। But on seeing the fear of मगर उस भय को देखकर King Hezekiah, जो हिजकिय्याह राजा में था, the Lord turned his verdict परमेश्वर ने अपने निर्णय को बदल दिया and told him, और उससे कहा, you will live तुम जीवित रहोगे more than 15 years. 15 साल से भी ज्यादा। Hallelujah. हालेलुया। Many people nowadays, कई लोग आजकल fear of death, मृत्यु के भय को रखते fear हैं, of darkness. अंधकार के भय को रखते हैं। Many mothers used to cry to me, कई माताएं मेरे सामने रोती थी, my daughter, my son मेरे बेटी, मेरा बेटा couldn't even go to washroom, वो बाथरूम तक नहीं जा पाते हैं, even though it's attached to the bedroom. वो उनके बेडरूम से लगा हो तो भी। And my children are afraid of the darkness. मेरे बच्चे अंधकार से डरते हैं। That's why Jesus said इसीलिए यीशु ने कहा in Luke chapter 22 verse 56, लूका 22 के 15 में 55, और 55 में, this is the power of darkness. ये अंधकार की एक सामर्थ है। This is a time of darkness. ये समय अंधकार का है। Jesus conquered that in the Garden of Gethsemane. परंतु यीशु ने गतसमने की वाटिका में उस पर जय पा लिया।
So don't be afraid. इसलिए मत डरो। So many elderly people कई एक बुजुर्ग लोग होते हैं, used to see their former relations who were dead in the dreams. वो सपनों में अपने मृत रिश्तेदारों को देखते हैं। So many people used to see the demons कई लोग दुष्ट आत्माओं को देखते हैं, or the backlash of the evil cinemas and evil pictures. या फिर उन बुरे मनोरंजन की चीजों को जैसे चलचित्र या फिर पिक्चर होते हैं। How to escape from them? इनसे कैसे बचा जाए? When the night comes, जब रात आती है, read the Gospels. परमेश्वर के वचन को पढ़ें। There's a light of God. उसमें परमेश्वर की ज्योति है। Every word is light of God. हर एक वचन परमेश्वर की ज्योति है। Oh, Heavenly Father, इसलिए हे स्वर्गीय have पिता, compassion upon your people. अपने लोगों के ऊपर दया दिखा। If their conscience is so pricking because of one sin, अगर उनका विवेक उनको पाप के कारण परेशान करता है तो what they have done before some years ago, उन चीजों के लिए जो उन्होंने कुछ साल पहले किए थे, please make them to confess उसका उनको अंगीकार करने में मदद करें and let the blood of your cross wash it. और क्रूस में बहे उस लहू से उनको धो दे Let them be released from the consequence and the fear of death. और वो उस दंड और उस भय से जो मृत्यु से आती है छुटकारा प्राप्त करें। Today, drive out all fear of death. उन सारे मृत्यु के भय को उनसे निकाल दें। Your people, आपके लोगों के your अंदर से, children, आपके बच्चों के you अंदर have से conquered the darkness. आप उस अंधकार पर विजय You have प्राप्त करें। conquered everything. आपने सब चीज पर विजय प्राप्त You किया have है। conquered the pangs of death. आपने मृत्यु पर विजय प्राप्त किया है। So let my people release. इसलिए मेरे लोग छुटकारा प्राप्त Release. करें। छुटकारा प्राप्त Even the करें। young children, जवान लोग भी even the elderly people, और बुजुर्ग लोग भी, let them be released. उनको छुटकारा मिलने पाए। Even right now. अब भी छुटकारा Bless मिले। them. आशीष दें। Bless all those who pray for us. जो कोई हमारे लिए प्रार्थना करता है, Support जो us. हमें मदद करते हैं, In Jesus' name. यीशु के नाम में Amen. आमीन।